आजकल के ज़माने में फेक न्यूज़ बड़ी चल रही है। तो हम इस बार हमारा एक अलग मिशन रहेगा, जहाँ पे हम फेक न्यूज़ को कैसे काउंटर करें। काउंटर के साथ-साथ उनकी रिपोर्टिंग भी ज़रूरी है। Almost half a billion Indians have access to the internet in India, which is around 40% of population. The usage is vast. Internet penetration is approximately 15% in the rural India, where around 70% of Indians reside. So here we are. The impact of technology is crucial. The advisor who helped make BJP Haryana a social media powerhouse of data and growth is on our show today. Arun Yadav. Hello and welcome to Rabbi Rashi Foundation. Arun Yadav, State IT and Social Media Head for BJP Haryana, the man who developed traditional campaign strategies using technology. आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी. धन्यवाद राशि जी, आज के आपके शो में मुझे इनवाइट करने के लिए. So since Arun, we know that you've helped the party in the expansion plan. First, let us know about your professional journey, then followed by Arun Yadav as a person. I started my political journey around 4-5 years back. Before that, I was working with various corporates. And I belong to a very humble family from a village near Rewari, which is called Mandola. And you would be astonished to know that in my family, I'm the first generation politician. And there is no politician in my family. And my family even did not know the Sarpanch of the village, I believe, by his name. Because of the humble background we had, so, रोटी कपड़े और मकान में ही जिंदगी बीत जाती है. लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, मुझे पढ़ाया और पढ़ने के बाद मैंने आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी विद Aon Hewitt. At that time it was Aon Hewitt. Then I moved on to Mercer Consulting and then worked with Safeguard World International and for some time with Google also. And I've completed my MBA in HR. Many people are very interested in knowing that from a corporate background how you come into politics. So first of all, I look to tell you that I'm not a pure politician. Technology has a very important role to play in this era. And after our Prime Minister Narendra Modi ji was sworn in from 2014, you have seen so many massive changes in the way the election campaigns are run, and also the intrusion of technology in delivering the public schemes to the masses at large. So that was a very interesting phase, and in 2014 everyone was so pumped up to do something for the nation. So उसी जर्नी को मैंने ज्वाइन किया. I was inspired by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to do something for the country. जैसे मोदी जी का एक क्या कहते हैं ध्येय वाक्य होता है, उनका एक पूरा अगर आप जीवन देखोगे तो वो इस तरीके का ही है कि वो एक मूल मंत्र पे ही चलता है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. सो country is giving you everything, so it's your turn to give something to the country. So I believed in that, and then I joined the most nationalistic party in India and across the world, which is Bharatiya Janata Party. We are the largest party in the world, and with the member of around 15 crore people. We are the change makers. You have seen that what changes have India witnessed after 2014. I won't talk about any negativities which were prevalent previously, because we are a very positive party. We focus on our work, not on what other people are doing. And that is why we were able to deliver so much for the country in a span of just 7 years. Even in Haryana, under the able leadership of our CM, Mr. Manohar Lal ji, you have witnessed wide ranges of changes, especially like I stay in Gurgaon. And Gurgaon have seen in 7 years such vast changes in terms of the upliftment of the infrastructure. Under the leadership of Manohar Lal ji, so many massive infra changes. The Gurgaon's first university came into existence under his able leadership. And still to go, there are many things to go. And I think we would deliver in what we have promised.
Absolutely wonderful. I'm not for Gurgaon, but I'm in love with Gurgaon because of the infrastructure and the people over here. They're extremely warm. Arunji, you know, direct democracy is deeply embedded in cyber culture. Information technology does facilitate the distribution of political information. Since you are the IT head of BJP Haryana, what are your thoughts on this? Over to you. Many people in Gurgaon, especially if I talk about Gurgaon, don't read newspapers. Every consumption which is happening is on mobile phone. Your mobile is your world, right? So if you consume information related to government or any news, I say, you consume on your mobile phone through various digital platforms. That's what I'm saying. Like after 2014, when the information technology came into politics, like IT was before also, but in Modi era, especially, the technology has made vast intrusion, I would say, into the political working, as well as in the delivering of the public welfare schemes to the poor. And that is why the people like us, the technocrats, joined party so that we passed on this message to the people and to our own people. BJP is a party who never stops. We keep on working 24 hours, 365 days. The working does not stop. I give you an example of how technology changed the dynamics of the politics in pandemic. We started organizing virtual rallies. So if we talk about virtual rallies in 2014, 15, 16, what is virtual rally? Because we are used to rallies जहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड होगा और नेताजी आएंगे और वो बोलेंगे. बट भारतीय जनता पार्टी इज द फर्स्ट पार्टी, क्योंकि हम हर आपदा में भी, हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढते हैं. We look for an opportunity, and I say that, I told you before also, हम बड़े पॉजिटिव लोग हैं. तो हमने, क्योंकि हम अपने कार्यकर्ताओं को खाली नहीं छोड़ सकते, जो हम कार्य कर सकते हैं वो भी हमें जनता को बताना है और जनता के दुख दर्द में भी इंटरेक्ट करना है. तो हमने एक वर्चुअल रैली ऑर्गेनाइज की, एंड यू वोंट बिलीव इन दैट वर्चुअल रैली in Haryana itself, more than 15 lakh people attended that rally. And that was through Zoom also, through WebEx also, it was on Facebook also, it was on Twitter also. So presentation बनाना सबको ही आता है कॉर्पोरेट में, ऑलमोस्ट सबको, इवन बेसिक एंट्री लेवल पे भी वो सारी चीजें आती हैं. लेकिन ये सब पॉलिटिक्स में नहीं था. तो जब मैंने पहली बार VLOOKUP लगा के कुछ डेटा किया तो they were shocked what software I have used. So उस तरीके से हम लोगों की एक अलग पहचान बनी. और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, और अगर आप पॉजिटिवली कुछ कर रहे हो तो यू विल गेट रिकग्निशन. लाइक इफ वी टॉक अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनका तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उनके तो फादर भी पॉलिटिक्स में नहीं थे. ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, बट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ. Own talent, and that is only possible in parties like Bharatiya Janata Party, and the Bharatiya Janata Party is the only party which is making it possible. फिर अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जैसे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारी बड़ी हंसी उड़ाई गई कि यार हम गरीब लोगों के बैंक अकाउंट क्यों खोल रहे हैं. मैं बस एक एग्जांपल के साथ इसको खत्म करता हूं कि गरीब लोगों के आप बैंक अकाउंट क्यों खोल रहे हो, उनके पास तो पैसे ही नहीं है. सबने बहुत हंसी उड़ाई. लेकिन गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड दर्ज है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर किसी के बैंक अकाउंट खुले, करोड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट खुले. आज हम देखते हैं कि उस व्यक्ति मोदी जी का क्या उद्देश्य था वो बैंक अकाउंट खोलने का. यू सी, डायरेक्ट बेनिफिट इज गोइंग इनटू देयर अकाउंट्स. जो भी सब्सिडी देनी है हमें बिचौलिए नहीं चाहिए. वी डोंट नीड अ मिडलमैन, दैट शुड गो डायरेक्टली टू देयर बैंक अकाउंट. So that is technology, and जहां जहां टेक्नोलॉजी आती है, जितनी टेक्नोलॉजी आती है, you know that corruption goes down. और हमारी कंट्री में कितना करप्शन था पहले वो हमें पता है. और अगर हम कैंपेन्स की बात करें तो कैंपेन्स में तो देखिए, मैंने जैसे बताया, स्पेशली अगर आप बीजेपी हरियाणा की बात करेंगे, बीजेपी की बात करें, वी आर इनटू पॉजिटिव कैंपेनिंग, क्योंकि हमें नेगेटिव कैंपेन करने की जरूरत ही नहीं है. हमारे पास इतना हमने डेवलपमेंट के कार्य किए हैं, हम वही टेक्नोलॉजी के यूज में पहुंचा दें, वही हम क्यों नेगेटिव करेंगे. नेगेटिव वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ होता ही नहीं है बताने को. अब जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं,
तो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल सारे लोग यूज करते हैं, दैट्स व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज अ वेरी मीडियम जिसके जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप फैलाते हैं। तो अगर मैं सुबह उठता हूँ, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, बीइंग द आईटी हेड ऑफ बीजेपी हरियाणा, मैं सुबह उठता हूँ, देखता न्यूज़पेपर्स में क्या क्या पॉजिटिव चीजें आई हैं। जैसे आज ही मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई हुई है कि इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम है उसके अंदर 9 प्लेयर्स, 9 लड़कियां हमारे हरियाणा की हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो इट्स सच अ पॉजिटिव न्यूज इन सच अ एनवायरमेंट। अभी जो इस समय माहौल चल रहा है कि सोचो, एक राज्य छोटा सा, हरियाणा बहुत छोटा राज्य है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, और हॉकी में जितने प्लेयर, 9 जो प्लेयर्स हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वो हरियाणा की बेटियां हैं। तो दैट्स सच अ पॉजिटिव न्यूज। तो वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, वी हैव डिफरेंट ग्रुप्स जो हमने पहुंचाई, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे पेजेस होते हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, वो तो वहां पे वो जाते हैं। सो पॉजिटिव टेक्नोलॉजी का जो भी इस्तेमाल करेगा, कोई भी इस्तेमाल करेगा, दे आर पीपल जो स्टे रहेंगे और जिनसे जनता कनेक्ट करेगी। Arun ji, you know that technology also brings negativity, since we've spoken about the positivity. Now, what are your thoughts on the regulations on the correct information that must go to the public? कुछ भी रेगुलेशन जो लगाएंगी गवर्नमेंट, वो रेगुलेशन सिर्फ एक ही बेसिस पे होगा कि क्या वो इंफॉर्मेशन इज इंपैक्टिंग कंट्री, उसकी सिक्योरिटी। कोई ऐसी फेक न्यूज तो स्प्रेड नहीं हो रही इंटरनेशनली इंडिया के बारे में जो कि हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन को हार्म कर रही हो। कि भाई जैसे यहाँ पे तो बहुत दंगे होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ में तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, राइट? और उनसे रिलेटेड जो फेक न्यूज स्प्रेड की जाती है उस पर रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि इंडिया बड़ी क्लासिक कंट्री है, हमने हर किसी को अपनाया है। इंडिया आई थिंक इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव नॉट इन्वेडेड एनी कंट्री। पूरे वी आर अ पीस लविंग कंट्री, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी भी ना हो कि आप अपने देश के खिलाफ बोलने लग जाएं। और इसमें मैं कोई बीजेपी गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी गवर्नमेंट आए या जो भी गवर्नमेंट है, उसको टेक्नोलॉजी पे इतना कंट्रोल और वो होना ही चाहिए कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की इमेज अगर कोई गलत ढंग से उसको ट्विस्ट करके, फेक करके फैलाने की कोशिश कर रहा हो, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो और उसके सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी बंद हो। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कोई आपके मदर या फादर नहीं है, कारण वो पेरेंट्स भी नहीं है। गवर्नमेंट तो हम चुनते हैं। आजकल हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं विच इज फ्री फॉर यूसेज, उसकी मेंबरशिप भी नहीं होती, और वहां पे क्या परोसा जाता है एवरीबडी नोज इट। अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है तो इट्स गुड, वो करना ही चाहिए उनको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसा कोई कंटेंट देखें। हमारे बच्चे मोटिवेशनल कंटेंट देखें, उनको कोई मतलब मैं आई शुड नॉट यूज इट, मतलब गलत चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट उस पर रेगुलेट करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। How are you going to do justice to a very important role, responsibility as the IT head Haryana, BJP Haryana? What is your mission and vision? What are you planning now to take it further for the expansion of the party? हमारा मिशन यही है कि जो हमारा वास्ट नेटवर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है उसको और बड़ा करते हुए, जैसे हरियाणा की पॉपुलेशन अराउंड 3 करोड़ लोगों की है, जिसमें से 51 लाख लोगों के पास स्मार्टफोन है आज के टाइम में। तो हमारी रीच उन तक पहुंचे। जो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, उनके बेनिफिट्स, उनकी चीजें टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे लोगों तक पहुंचे। जो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और उसका किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और करेंगे, तो वो एक्सपेंशन का हमारा एक बहुत बड़ा वो रहेगा। हमारे नीचे वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता से अगर आप बात करोगे, वो बीजेपी में आने का मतलब है नेशनलिज्म। We care for the nation. We take pride in our culture, and that is very important.
अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज लाइक चाइना और इन सब से, उन्होंने अपनी कल्चर में प्राइड की, तभी तो वो आज वहां पे पहुंचे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम उनसे पीछे रह गए, हम पीछे नहीं रह गए, वी आर फॉरगॉटन टू टेक प्राइड इन आवर कल्चर। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपनी कल्चर में प्राइड करें, उसका एक्सपेंशन का हमारा एक मॉड्यूल होगा। प्लस जो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है, अच्छे काम जो लोगों तक कर रही है, बेनिफिशरीज तक जो हम पहुंचे, तो वी विल टारगेट दी बेनिफिशरीज एंड ट्राई टू स्प्रेड करेक्ट मैसेज। यस, और हम जो भी फेक न्यूज है, आजकल के जमाने में फेक न्यूज बड़ी चल रही है, तो हम इस बार हमारा एक अलग मिशन रहेगा जहां पे हम फेक न्यूज को कैसे काउंटर करें। काउंटर के साथ साथ उनकी रिपोर्टिंग भी जरूरी है, उस पे काम करते हुए सारी चीजों को करेंगे। और टेक्नोलॉजी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा ध्येय सिर्फ पॉजिटिव यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी में रहता है, और हमने आज तक सिर्फ पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ही की है। तो एक्सपैंड भी हम पॉजिटिवली करेंगे, जिंदगी में भी हम पॉजिटिव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी पॉजिटिव है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी पॉजिटिव है। हमारी पार्टी एक पॉजिटिव लोगों की पार्टी है, क्योंकि हमने पेंडेमिक जब आया तो भी हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने सभी को बोला कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रुकता नहीं, आप निकालिए कि कैसे आप लोगों को एंगेज करेंगे, कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएंगे, कैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन पहुंचाएंगे, कैसे आप ब्लैक फंगस का इंजेक्शन पहुंचाएंगे। तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, उन्होंने यूएस से ऑर्डर किए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ही नहीं, भारतीय पूरे देश में पहली पार्टी हरियाणा यूनिट बनी जिन्होंने हर जिले में हमारे ऑक्सीजन बैंक खुले। लेकिन आप देखिए, प्रिपरेशन आप मॉनसून में रेन का कर सकते हो, फ्लड का कर सकते हो, लेकिन सुनामी का तो नहीं कर सकते। लेकिन उस सुनामी में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेवा रसोई, हमने सेवा रसोई शुरू की। जो भी अटेंडेंट आते हैं, अब अटेंडेंट तो बेचारा हॉस्पिटल में एंटर भी नहीं कर सकता क्योंकि बीमारी ऐसी है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई रेस्टोरेंट ओपन है नहीं, वो खाना कहाँ से खाए। तो एक कौन सोचता है, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे ही लोग सोचते हैं, ऐसे इनोवेटिव चीजें कि यार जरूरत, क्योंकि हम उसी चीज में बिलीव करते हैं ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो हमने सेवा रसोई का काम किया, उनको खाना पहुंचाने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, हमने ऑटो एम्बुलेंस तक चले। तो ये सब हमने जो काम किए हैं, इससे लोगों में बहुत पॉजिटिव मैसेज गया। This is the professional side of Arun Yadav. What is the social side of Arun Yadav ji? वैसे तो देखिए, कहावत वो होती है, नेकी कर दरिया में डाल। और जो भी हम सीएसआर और लोगों की मदद करते हैं, वो मेरे हिसाब से उसका व्याख्यान नहीं किया जाता, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, जैसे जो मेरा शेड्यूल रहता है, सो आई माइट नॉट गेट टाइम फॉर प्रेइंग, मेरे को प्रे करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं किसी गरीब या जरूरतमंद की मदद कर देता हूँ, तो वो भी इट्स लाइक प्रेइंग, यू आर प्रेइंग टू द गॉड बाय दैट। सो वो एक मेरा सेल्फ बिलीव हर समय रहता है। हमारा पूरा जो यूथ का एक सर्कल रहता है, जो मेरे पर्सनल बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हमने इस पेंडेमिक में भी बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्प करने की कोशिश की। और मेरा ये भी मानना है कि हम जिसकी भी हेल्प करें, उसका व्याख्यान ज्यादा इसलिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो उसकी एक तरीके से एक कहते हैं ना, मतलब हम उसको डिमीन कर रहे हैं। If I am helping anyone, it is like praying to the God, and I would always want कि भगवान मुझे इतना दे कि I keep on helping many people. बात करने पर ही पता चलता है कि वो इंसान कितना नेक है. This is what Arun Yadav, the real Arun Yadav is. Okay, Arun ji, what is a special message to all the youth, to all of Haryana from the IT department of BJP Haryana? सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, देश के प्रति सोचें, और किसी के फालतू चक्कर में ना पड़ते हुए अपनी एजुकेशन पूरी करते हुए पॉजिटिवली अपनी फैमिली के प्रति कंट्रीब्यूट करें, स्टडी करें, कुछ ना कुछ जॉब लगे आप लोगों की, और अपने देश के लिए जरूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि अगर कंट्री रहेगा तो हम सब रहेंगे। और पॉजिटिवली काम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, अपने छोटों को प्यार दें, और कोई भी गलत संगत में ना पड़े, क्योंकि इस समय क्या कहते हैं, इतना खुला माहौल है
कि लोग बहक जाते हैं, यूथ बहुत बहक जाता है, ठीक है। तो कोई भी ड्रग्स, अल्कोहल इस तरीके के चक्कर में ना पड़ते हुए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हुए, अपने देश के लिए भी आप तभी कुछ करेंगे जब आपकी कुछ जॉब होगा। Let us not ignore the hard work behind the growth of a country's largest party. Support them by spreading the right kind of information. Support